Everyone try to imagine themselves sitting in Dhyanshala of ashram in front of Swamiji. Now, by seeking blessings from Guruji and Guruma, close your eyes and relax your body. Sit in comfortable position and see to it that nobody disturbs you. सभी अपने आप को आश्रम के ध्यानशाला में स्वामी जी के सामने बैठा हुआ इमेजिन करें। अब गुरुजी और गुरुमाँ के चरणों में नमन करते हुए अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए और इस चीज़ पर ध्यान दें कि मेडिटेशन के दौरान कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। As we all now are fully positive and pure like lotus, we will utilize this positivity to focus on our talent, our strength, which we have to use to achieve our goal. We all have goals. We all have common goal to be happy, to be blissful. And we have already removed all hurdles, all the blockages which were coming in our path to achieve this blissful state. We have strength to work on our weaknesses. We have strength to achieve our goals. We all have inbuilt potentials inside us. We just have to realize it and invoke it so that we can channelize it in the right direction to achieve our goal. हम अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। इस पॉजिटिविटी को हम हमारे उद्देश्य को पाने में, लक्ष्य को पाने में जो क्षमता चाहिए उसे पहचानने के लिए उपयोग करेंगे। हम सभी के पास एक उद्देश्य है और हम सभी के पास एक कॉमन उद्देश्य भी है। वह है खुश रहना, प्रसन्न रहना, जो हम ऑलरेडी पा चुके हैं। हमारी सारी रुकावटों को दूर हटाकर, हमारी कमज़ोरियों को दूर हटाकर, जो हमारी खुशी के बीच में रुकावट बनी हुई थी, हम सब हमारे बीच जो शक्ति थी उसको यूटिलाइज करके हमने उस खुश रहने के उद्देश्य की पूर्ति कर ली है। हम सब में वो शक्ति है, वो हिम्मत है हमारी कमज़ोरियों से लड़कर उन्हें हमारे रास्ते से हटाने की। हमारे लक्ष्य को पाने की हिम्मत है हम में। आज हम हमारा सारा ध्यान लगाएंगे और हमारी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करेंगे। हमें हमारे लक्ष्य को पाने में जो मदद करेंगी उन क्षमताओं को हमारे भीतर जो है उपस्थित है उन पर हम ध्यान देंगे। Now, while I chant Om, you all contemplate on your strengths, which are going to help you all to achieve your goal. Your goal can be anything.
If you want someone to get married, you want to achieve some position in your life. It can be family oriented or business related. It can be related to your family harmony. It can also be related to spirituality, also to attain enlightenment, to feel the bliss, to feel the Brahman. हम हमारी क्षमताओं को पहचानेंगे जो हमें मदद करेगी हमारे लक्ष्य को पाने के लिए। वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी की शादी कराना हो या किसी को बेबी चाहिए। वह बिजनेस से रिलेटेड हो या फैमिली हार्मनी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी रह सकता है यह गोल हमारे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, हमारे ब्रह्म को फील करने की इच्छा भी रह सकती है। नाउ while I chant Om, you all search and try to know your potentials. Now that we all have found out our potential, imagine that strength, that potential is getting invoked slowly, like the lotus which blooms from a small bud to a big lotus after the sun rays fall on it. Same way, our potential is also spreading all over our body with the blood which is flowing in our body. It is getting invoked
and spreading throughout our body. And we are also bloomed and glowing like a lotus. It was somewhere hidden like a bud, 5%. Now it is blooming to a complete bloomed lotus from a small bud, 100% open. Same way, our potential, which was somewhere hidden, is now become 100% after getting invoked, and we can feel that running with the blood in our body. अब हमें यह पता चल गया है कि वह पोटेंशियल जो क्षमता हमारे भीतर ही है और वह क्या है। जब हम यह जान चुके हैं तो अब यह इमेजिन करेंगे कि वह क्षमता हमारे सारे शरीर में धीरे धीरे फैल रही है, जैसे एक कमल की कली एक सुंदर फूल में परिवर्तित हो रही है सूरज की किरणों के कारण। उसी प्रकार हमारे भीतर जो क्षमता कहीं छुपी हुई थी, जो केवल 5 से 6% तक ही हमें समझ आ रही थी, आज वह एक कली से एक सुंदर फूल बन रही है और हमारे भीतर वह क्षमता अब 100% पोटेंशियल बढ़ रहा है। वह पोटेंशियल हमारे सारे शरीर में हमारे रक्त के संचार द्वारा सारे शरीर में फैल रहा है और पहुंच रहा है। तो हम अब यह ध्यान देंगे, हमारे उस पोटेंशियल को बढ़ता हुआ फील करेंगे, महसूस करेंगे। While I chant Om, you all focus on your potential getting invoked and spreading throughout your body.
Now we are full with positivity and our potential. Now there is only fullness of gratitude, positivity, acceptance, and potential. Now, with this fullness, we will bring our focus on our goal. We will bring our focus on our goal and start seeing and imagining that we are using our full potential and we have received and attained our goal, whatever our goal is. It can be anything. It can be getting married, having a baby, family harmony related, or business related. It can also be spirituality related. It can be our ultimate goal to attain enlightenment. Imagine this on your Agra Chakra. Imagine a circle on your Agra Chakra. Agya Chakra is where we all put tilak in puja room. That is Agya Chakra. And in that circle, imagine the end result of your goal with full intensity. Don't keep 1% doubt on it. Don't focus on the process of the goal. Focus on the result. See that you have achieved what you have desired for, targeted for. See that your goal has completed. It has fulfilled. While I chant Om, imagine this in the circle on our Agya Chakra. अब हम पूरी तरह से भरे हुए हैं पूर्णता से, पॉजिटिविटी से, ग्रैटिट्यूड से, एक्सेप्टेंस से और हमारे पोटेंशियल से। अब इस पूर्णता को महसूस करते हुए हम हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। आपकी लाइफ का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। किसी की शादी कराना, माँ बनना, फैमिली हार्मनी से रिलेटेड या हमारे काम से रिलेटेड या हमारा अल्टीमेट एनलाइटेंड का गोल भी हो सकता है हमारा उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर अपनी कल्पना करें और सोचें। अपने आज्ञा चक्र पर इमेजिन करें, अपने आज्ञा चक्र पर एक सर्कल को। आज्ञा चक्र वह जगह है हमारे आईब्रोज के बीच में जहाँ लेडीज बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इमेजिन कीजिए उस आज्ञा चक्र पर एक सर्कल को और उस सर्कल में आपके उद्देश्य को पूरा होते हुए देखें। उसके आखिरी रिजल्ट को देखें, एंड रिजल्ट को देखें।
कोई शंका न रखें इसमें और पूरी इंटेंसिटी के साथ सोचिए और इमेजिन करिए उस सर्कल में। देखिए आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है, आपको उसकी प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा देखिए कि जो आप चाहते हो वह हो चुका है। नाउ while I chant Om, you all keep imagining your achievement seen with full intensity in the circle on your Agya Chakra. Now feel the happiness, the joy you get after the achievement of your goal. Feel the same joy right now. Feel the same ambience which gets created after the achievement of your goal. Feel the people around you who are so happy and they are all congratulating you for your achievement. Imagine the same scene with full intensity. Feel exactly right now how you feel after accomplishment of your goal. Bring the same amount of joy and happiness on your face, in your mind. Let the mind be filled with joy. See the celebrations, feel them, the scene. Feel it with full intensity. Feel the celebrations going on after achievement of your goal. You are smiling in surprise that how easily you have achieved what you were desiring since so long.
Just keep floating in the scene. Just feel the bliss. Enjoy the joy, the happiness, the excitement of your accomplishment, of your goal. Feel it throughout, through whole body. And while I chant Om, you all keep feeling the bliss all over your body. अब महसूस कीजिए उस खुशी को, उस आनंद को जो आपको अपनी गोल की प्राप्ति पर मिलेगा। उस आनंद को महसूस करें। उद्देश्य की पूर्ति होने पर जो माहौल बनेगा, जो एक सीन क्रिएट होगा, उस सीन को इमेजिन करें और महसूस करें। देखिए किस प्रकार आप एक्साइटेड हैं। आपका एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर झलक रहा है। उस एक्साइटमेंट को इसी क्षण, इसी पल महसूस करें पूरी इंटेंसिटी के साथ। देखिए आपके आसपास के लोग, आपका आसपास का वातावरण कितना खुशी से भरा हुआ है। आपके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त आपको बधाई दे रहे हैं आपके इस अचीवमेंट की प्राप्ति पर। देखिए किस प्रकार आप खुशी से झूम रहे हैं और चारों ओर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। आप कितने खुश हैं, एक्साइटेड हैं। उस सारे एक्साइटमेंट को, सारी खुशी को इस पल, इसी क्षण महसूस करें और उसका आनंद लें। देखें कि जहाँ आप हैं वहाँ का वातावरण भी कितना खुशहाल हो चुका है। जितनी प्रसन्नता आपको आपके गोल की प्राप्ति पर हो रही है, वह अभी इसी पल आप महसूस कर सकते हैं, इसी पल फील कर सकते हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही है। आप सोच रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा काम, इतना बड़ा उद्देश्य इतनी आसानी से कैसे पूरा हो गया है। इस दृश्य की कल्पना करें और इसका आनंद लें सारे इंटेंसिटी के साथ। अब फील करते हुए इसी दृश्य को इमेजिन करें। जब मैं ओम का उच्चारण करूँगी, उस समय आप इस सीन को, अपने गोल के अचीवमेंट के सेलिब्रेशंस को आप फील करेंगे, एंजॉय करेंगे।
fun which we have celebrated, we have enjoyed on our Agya Chakra, in the circle which is there on our Agya Chakra, the same scene is slowly going towards the cosmos. इमेजिन करें उस सर्कल को बढ़ता हुआ, अपने आज्ञा चक्र से उस सर्कल को बढ़ता हुआ देखें और उस सीन को भी उस सर्कल में बढ़ता हुआ देखें और जाता हुआ देखें हमसे दूर इस कॉस्मोस में. सी द सर्कल which is on our Agya Chakra is going towards the universe with full intensity. According to Newton's law, how the ball which goes in the sky with the same intensity it comes back. So see the scene going towards the universe with the full intensity. The scene is slowly getting vanished from your Agya Chakra, from the circle which you have imagined on your Agya Chakra. धीरे धीरे वह दृश्य आपकी आंखों से ओझल हो रहा है और ओझल होते होते वह यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में मर्ज हो चुका है. जैसे हम एक गेंद आसमान की ओर फेंकते हैं, उसी स्पीड से, उसी इंटेंसिटी से वह हमारी तरफ वापस आता है. तो जो हमारा उद्देश्य है वह भी उसी इंटेंसिटी से पूरा होगा जितनी इंटेंसिटी से हमने इसे फोकस किया है. हम साथ में यह भी प्रे करेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है, जो गोल है, अगर उससे किसी का नुकसान होता है या किसी को हानि पहुंचती है तो हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं चाहिए. हम यह प्रे करेंगे ब्रह्मांड से. We will also pray to the cosmos that if while achieving our goal, if someone is getting hurt, then we will not like to accomplish our goal. किसी को हानि पहुंचाकर हम खुश नहीं रह सकते हैं. तो अब जब हमारा यह गोल अचीवमेंट हमारी आंखों से ओझल हो चुका है, तब फील करें जो एक सैटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है हमारे इस अचीवमेंट पर, हमारे गोल की प्राप्ति पर. हमें जो एक सैटिस्फैक्शन का एहसास हो रहा है, उस सैटिस्फैक्शन को एहसास करें, उसे महसूस करें. फील द सैटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर गोल. फील इट, फील द bliss, feel the joy, and just feel it all over the body. Feel your mind, how relaxed it is, how calm it is. Now there is nothing to worry, there is only peace. Now we are just at peace, just at bliss. बस इस ब्लिसफुलनेस को, इस आनंद को महसूस करें, इसका आनंद लें और इसमें झूमते रहें. देखिए
हमारे चेहरे पर एक शांति का भाव आ चुका है। सी आवर फेस दैट हाउ पीसफुल इट हैज़ बिकम, हाउ calm it has become. See the smile on our face, a beautiful smile. हमारे चेहरे पर एक शांतिपूर्ण, एक सुंदर मुस्कुराहट को महसूस करें। देखिए, हमारा सारा शरीर ही नहीं, हमारा चेहरा भी कितना शांत है और इस शांति से वह मुस्कुरा रहा है। इसी शांति भरी मुस्कुराहट को मेंटेन करते हुए, इस ब्लिस को फील करते हुए, अपने चेहरों को पर इस स्माइल को बरकरार रखते हुए अपने दोनों हाथ एक दूसरे से रब कर धीरे धीरे अपने चेहरे पर लाएं और अपने चेहरे पर रखकर अपनी दोनों आँखें धीरे धीरे एक स्माइल के साथ खोलें।